Good afternoon, everyone. Students, I hope you all are safe and secure at your homes, doing all your maths practice regularly. I'm not take much of your time, so let's start with the video. What we have to do today, we have to start with our exercise, which is exercise 15A. This exercise is on page number 126. We have already done the introduction part of this chapter and also the examples of. Now I'm going to explain you the whole exercise 15A. So let's start with the first question. So very first question is write in decimals. That means you have to write all the solutions in decimals only. So let's start with first part. So what is your first part? I'm writing it here. A part in which you have to convert this millimeters into centimeters. Okay, so for this you all know that 1 millimeter is equals to how many centimeters. So you must know that 1 millimeter is equals to 1 by 10 centimeter. This is very much important, which you all must know. We have to find out that 5 millimeter is equals to how many centimeter. So what you will do, 5 divided by 10, which is equals to, अगर कोई भी fraction है whose denominator में the multiple of 10 is there and it has 1 0 with it, so what you do, one digit से पहले आप एक point लगाओगे and this will be your solution, right? So you just converted 5 millimeter into centimeters along with decimal. Is it clear? Now let's do next part. B part is same. You have to convert centimeters into meters. So you all know the conversions. So use them and then you can do it. I am going to explain you C part, which is 75 millimeters को आपको convert करना है into meters. Millimeters को you have to change in meters. So 1 millimeter is equals to, you know that 1 by 1000 meters. Bacha, this conversion is very much important. If you don't know these conversions, it will be very much difficult for you to solve the questions. Okay, so 75 millimeter is equals to 75 divided by 1000, which is equals to, if 3 zeros are there, तो आप unit place से 3 digit से पहले आप decimal लगाएंगे and this will be your solution. मैंने आपको ये पहले भी समझाया है. इफ़ नो डिजिट इज़ देयर, अगर आपके यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, आपको 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है, तो टेक अ हेल्प ऑफ ज़ीरो. ज़ीरो इज़ अ वेरी हेल्पिंग डिजिट जिसको आप यूज़ कर सकते हो डेसिमल्स के केस में. ठीक, सो दिस इज़ डन. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ई पार्ट, विच इज़ 17 ग्राम को यू हैव टू कन्वर्ट इन किलोग्राम. ठीक, so you know that 1 gram is 1 by 1000 kilogram. So obviously 17 gram is equals to 17 divided by 1000 kilogram, which is equals to, unit place से 3 digit पहले आप 0 decimals लगाएंगे. So this will be 0.017 kilograms. Is it clear? All the questions are similar in this case. All the parts are same. You can do it. I just told you so many questions. Rest of the questions you have to do on your own and kindly understand the concept. You will do it carefully. Okay. Now let's come to our question number 2, which is fill in the blanks. फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है, तो वही सेम चीज़ें कन्वर्ट ही करना है, तभी तो आप फिल कर सकोगे. लेट्स स्टार्ट विद बी ऑप्शन दिस टाइम. ठीक है, इस बार मैं आपको इवन ऑप्शन समझाती हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 2 में बी पार्ट क्या है, 3.6 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना. लेट्स डू इट. 3.6 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि जब भी सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स, राइट. तो 3.6 सेंटीमीटर्स कितने मीटर्स के बराबर होगा, 3.6 डिवाइडेड बाय 100. आप जानते हो अगर आपका कोई भी डेसिमल है 3.6 है, पॉइंट आप अगर हटाओगे तो आपके डिनोमिनेटर में 1 के बाद 1 0 आप पुट करते हो, तो व्हाट दिस विल बिकम 36 डिवाइडेड बाय 1000 बन जाएगा ना ये. अगर आप चाहो तो यहाँ स्टार्टिंग में ही उसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, बट अगर आप नहीं करते हो तो आप उसको बाद में भी कर सकते हो. सो 36 बाय 1000 को जब पॉइंट्स में लिखोगे तो 3 डिजिट से पहले आपको डेसिमल लगाना है वंस प्लेस से. सो योर सॉल्यूशन विल बी 0.036 meters. Is it clear?
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डू इज डी पार्ट. ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, विच इज़ 36.5 ग्राम्स को, लेट मी जस्ट राइट इट हेयर, 36.5 ग्राम्स इज इक्वल्स टू किलोग्राम्स. तो अगेन हेयर ऑल्सो व्हाट यू हैव टू डू, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम्स होंगे, 1/1000 होंगे, राइट. तो आपको सिमिलर चीज़ करनी है. 36.5 ग्राम को आप किलोग्राम्स में कन्वर्ट करो तो 36.5 डिवाइडेड बाय 1000. तो बच्चे यहाँ पे भी आप सेम चीज़ करोगे ना, डेसिमल हटाओगे तो 1 के बाद 1 0 आपके डिनोमिनेटर्स में आएगी. डिनोमिनेटर्स में ऑलरेडी एक नंबर है तो आप उसके मल्टीपल में उसको लिखोगे. दिस विल बिकम 365 डिवाइडेड बाय 10,000. अब आपको 4 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है. तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट से पहले डेसिमल. सो योर सॉल्यूशन विल बी 0.0365 kilograms. Is it clear? One more question I am going to do of this type, then it will be easier for you. लीटर्स को D के बाद मैं आपको F पार्ट समझाती हूँ. F पार्ट, ठीक है, जिसमें आपको 62 मीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है. सो लेट मी जस्ट डू इट हियर. F पार्ट 6.2 meters is equals to millimeters. You know 1 meter is equals to 1000 millimeters. तो 6.2 मीटर्स को आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि अगर आपको 1 का चीज़ पता है, आपको ज़्यादा का फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई करते हो. 62 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 62,000. अब आप देखो क्वेश्चन में 1 डिजिट से पहले डेसिमल है तो आप 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगाओ और आपका कितना सॉल्यूशन आएगा, 6200 मिलीमीटर्स. इज इट क्लियर? एफ पार्ट के बाद मैं आपको एक पार्ट और समझा देती हूँ, एच पार्ट, जिसके अंदर आपको लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है. तो क्या पार्ट है, 2.07 लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो लेट्स डू इट. 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स. सो 2.07 liters will be equals to 2.07 multiplied by 1000 milliliters. This will become 207 and triple zeros. 2 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा because it is there in the question. So 2070 milliliter will be your solution. Understood? So all the other parts of question number 2 you can do now on your own because they are really very simple, just like you have done it in your one part. Now I'm going to explain you this question number 3. In this question number 3 you just have to convert the terms. आपको सिर्फ कन्वर्ट करना है. तो here also I'm starting with B part. So B part is 5.7 मीटर्स को आपको कन्वर्ट करना है into सेंटीमीटर्स. तो मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना सबको आता है. 1 मीटर्स में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं ना. So 5.7 मीटर्स will be equals to 5.7 multiplied by 100 which is 5700. मैंने आपको बताया है किसी भी डेसिमल नंबर को किसी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आप जस्ट उसको एज अ नेचुरल नंबर कंसीडर करके मल्टीप्लाई करो. फिर चेक करो कितनी डिजिट से पहले डेसिमल है, उतनी डिजिट से पहले डेसिमल लगाओ एंड यू विल गेट योर आंसर. सो व्हाट आंसर यू विल गेट, 570. नाउ डी पार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विच इज़ 25.9 सेंटीमीटर्स को आपको कन्वर्ट करना है इनटू मीटर्स. सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करते हो तो आप जानते हो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर्स है. बेटा अगर आपको इन क्वेश्चंस में ये कन्वर्जन्स लर्न नहीं है आप कोई भी क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन्स लर्न होना. 25.9 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करो तो दिस विल बी 25.9 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, डेसिमल हटाओगे तो डिनोमिनेटर में एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो एक ज़ीरो और एक्सटेंड हो जाएगी. दिस इज़ 259/1000. अब आपको 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है तो 3 डिजिट से पहले आप डेसिमल लगाओ, यू विल गेट योर आंसर 0.259 मीटर यू विल गेट. ठीक, डी पार्ट के बाद आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एच पार्ट. एच पार्ट है 10.19 kg इंटू ग्राम. किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना. 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, थोड़ा होल्ड ऑन करो वीडियो को एंड ट्राई टू फाइंड आउट. यू मस्ट गॉट इट. तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं.
10.19 kilogram will be equals to 10.19 multiplied by 1000, which is equals to 1019,000. तो 2 डिजिट से पहले आप डेसिमल लगाओ ग्राम्स, विच इज़ 10,190 ग्राम्स. तो आपने कन्वर्ट किया किलोग्राम्स को ग्राम्स में. सो इन दिस मैनर यू कैन डू ऑल द अदर क्वेश्चंस. और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है या लगता है कि यू आर नॉट एबल टू डू, सो यू कैन आस्क मी इन द मीटिंग. ओके, सो बट as I told you, the more question you will do on your own, the more you will understand the concept more clearly. ठीक है? So till then, take care everybody. Goodbye. We'll meet you soon now. So take care and try to do the questions. Okay? So goodbye everyone.